read me, I'll be not allowing the child to enter. Okay, now I'll be moving for the next property, that they are very reactive towards the water. After the reactivity towards the water, we'll be talking about the reactivity towards, we'll be talking about reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen, very important question which may come in the exam. देखिए, जब आपके पास लिथियम था तो लिथियम was reacting with oxygen and it forms, just wait, एक मिनट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देखिए, अगर लिथियम है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बना रहा है. अगर वो व्हाट वी मे कॉल, आपके पास सोडियम है तो वो परऑक्साइड बना रहा है. और अगर आपके पास पोटेशियम है या रुबीडियम है या सीजियम है, दैट इज फॉर्मिंग अ सुपर ऑक्साइड. ये सारे के सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं. दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, but they are producing the different products. So why it is happening? First of all, before knowing the reason, we must know what is superoxide, what is peroxide. देखिए, ऑक्साइड जो है that is O-2. O-2 is oxide, right? इसमें you add half of the oxygen molecule or one atom of oxygen. This will be forming, that is peroxide. This will be forming peroxide, and then you add oxygen molecule into it, then it will be forming 2O2-1, and this is your superoxide. ठीक है. तो अब देखिए, ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन एटम है और peroxide में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, and it is 2 oxygen molecules in case of peroxide. Now you see what is happening basically. अब जो लिथियम है, राइट, जो आपके पास लिथियम है, इट हैज गॉट वेरी स्मॉल साइज. ठीक है. और जैसे ही लिथियम आयन के पास एक ऑक्साइड आयन अप्रोच करता है तो लिथियम का पॉजिटिव फील्ड, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, that it does not allow lithium to this oxygen to further get linked with another oxygen atom. ठीक है. क्या हुआ बेसिकली, इसका lithium has small size. ध्यान से सुनेंगे, नहीं पता लगेगा तो you can ask me again. ठीक है. स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हुआ, that is strong positive field. It has got strong positive field. Strong positive field होने की वजह से it attracts the negative charge. It attracts the negative charge so strongly, इतनी strongly ये negative charge को खींच लेगा अपनी तरफ, that oxide ion is not allowed. Oxide ion is not allowed to combine with another oxygen atom. To combine with another oxygen atom. Is this point clear? Oxygen atom. This is not allowed to combine with another oxygen atom. So it leads to the formation of monoxide. ठीक है, ये monoxide बनेगा. उसके बाद it comes to sodium. ठीक है. सोडियम आयन का क्या हुआ, सोडियम आयन जो है ये ऑक्साइड इसके पास आया. ठीक है. इसका लार्ज साइज है. ठीक है. लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, it has got less strong positive field. अब लेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होने के वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये जो ऑक्साइड आयन है, दिस विल, इसके साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ इट विल attract an oxygen atom towards itself, and it leads you to the formation of peroxide. Is this point clear with everyone? It will lead you to the formation of peroxide. क्योंकि सोडियम आयन का पॉजिटिव फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था साइज बड़ा होने की वजह से, जिसकी वजह से वो सारा के सारे ऑक्साइड के नेगेटिव चार्ज को नहीं पकड़ के रख सका, एंड ऑक्साइड वाज अलाउड
to get attached to another, combined with another oxygen atom and to form peroxide. Is it okay? Is it fine with everyone? Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? When I am coming to potassium, I am coming to rubidium, I am coming to cesium. They have got the big size. ठीक है? They have big size. बच्चे जितना छोटा साइज होता है ना, उतना ही चार्ज जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक छोटे से रीजन में सिमट गया है वो चार्ज. जितना वो छोटे से रीजन में सिमट जाएगा, उतना ही उसका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा. Now these have got a big size, so it has weak positive field. They have weak positive field. Weak positive field होने की वजह से क्या होता है? And thus cannot prevent peroxide ion to combine with another oxygen atom. Another oxygen atom and to form superoxide. ठीक है? Superoxide has got the formula O2 minus 2. ध्यान से. I'm coming to the previous boards now. I am coming. एक मिनट. I'm repeating the entire answer. Just see. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं, कैन यू सी? अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, हाउ द एल्कलाई मेटल्स आर बिहेविंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. I said they all belong to the same group, but lithium is forming monoxide, sodium is forming peroxide, potassium is forming superoxide. Why is it happening so? They are all from the same group. ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा इसलिए हुआ, रीजन बीइंग कि यहाँ पे देखिए जो लिथियम था. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Lithium is forming monoxide, sodium is forming peroxide, potassium is forming superoxide. ऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपके पास peroxide आ जाएगा. peroxide के अंदर एक और ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे तो आपके पास superoxide आ जाएगा. So it goes like this. Now you see, I'm coming to the next screen, right? Why it happened? Lithium was having a small size. Because of the small size, the positive field was very strong. Okay? And it attracts the oxide ion so strongly that it does not allow that oxide ion to get linked to another oxygen atom. So monoxide banega and the story will get over. Now, when we talk about sodium has got a bigger size. ठीक है? सोडियम का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव फील्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. पॉजिटिव फील्ड विल नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग. अब क्या होगा? जो सोडियम आयन है दैट विल बी एबल टू अट्रैक्ट द ऑक्साइड आयन, बट इट कैनॉट प्रिवेंट. लिसन टू माय वर्ड्स वेरी थॉरली. It attracts the oxide ion, but at the same time it cannot prevent oxide ion to get linked with another oxygen atom. वो एक और ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से it leads to the formation of peroxide. I'm coming to the next screen. When you talk about potassium, rubidium and cesium, they have got really big size, weak positive field, because of which peroxide cannot be prevented to attach to another oxygen atom, and this lead to the formation of superoxide. Is this much clear to everybody? Is this much clear? Boliye, formation of peroxide, superoxides and oxides by the different elements of the same group. Is this point clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chaliye. I am coming to the next property. Then I'll make you read 2 pages. Then we'll be talking about that is a reactivity. We'll be talking about reactivity towards air and moisture. Okay? We all know that
एयर एंड मॉइस्चर की तरफ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। देखिए कोई भी एल्कलाई मेटल है दैट रिएक्ट्स विद एयर, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो है दैट कैन रिएक्ट विद द वाटर and leads you to the formation of metal hydroxide. Then the metal hydroxide reacts with the carbon dioxide and that leads you to the formation of that is metal carbonate along with the water. इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक में से, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इसमें से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता. व्हाट विल दे बी आस्किंग? ठीक है. देन वी हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. ठीक है. जितने भी एल्कलाई मेटल्स हैं, जितने भी आपके पास एल्कलाई मेटल्स हैं, all these alkali metals react with the hydrogen and they form metal hydrides. ठीक है. They form ionic metal hydrides. You all told me that day कि जितने भी एल्कलाई yesterday कि जितने भी एल्कलाई मेटल्स हैं वो सारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पे आयनिक मेटल हाइड्राइड बनेगा डायरेक्ट रिएक्शन के साथ. ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे आर ऑल द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. ये सारे के सारे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे तो दे विल बी ऑल वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है. नाउ जितने भी ये हाइड्राइड्स हैं, अब ये जो मैं बात कहने लगी हूँ ये चाहे दो रिएक्शन ही करने हैं पर ध्यान से देखिए, जितने भी ये हाइड्राइड्स हैं ये सारे के सारे प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्ट करेंगे. जैसे देखिए वाटर, वी ऑल नो दैट द वाटर कैन गिव H and OH, राइट. तो ये सारे के सारे प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. देखिए यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज लिथियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल आई एम राइटिंग वन मोर एग्जांपल. दो ही एग्जांपल चाहिए, याद करें पर सही वाले. जैसे सोडियम हाइड्राइड है, मैं एक और हाइड्राइड ले आई हूँ एंड दिस इज अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल जो है ना बच्चे, दैट गिव्स एन एल्कोक्साइड आयन इस तरह से और ये एक प्रोटॉन लिबरेट कर देता है. अब क्या होगा कि आपका ये जो प्रोटॉन है दिस विल बी रिएक्टिंग अप विद दिस हाइड्रोजन and there will be generation of hydrogen gas and there is formation of sodium alkoxide. तो ये जितने भी प्रोटॉन डोनर्स हैं ये सबके साथ रिएक्ट करके ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस को. एक बार बिफोर आई मूव फर्दर we'll be doing this many properties. आज जो हमने शुरू किया, आज हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है that is a reactivity towards water. हमने कहा ये सारे के सारे बहुत रिएक्टिव हैं. They react with the water and they liberate the hydrogen gas. The reaction is very violent because of which they are kept under the kerosene oil. दूसरी चीज जो मैंने पढ़ाई है that is lithium is forming monoxide, sodium is forming peroxide and potassium, rubidium, cesium they are forming superoxides. We have done the reason. तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है that is the reactivity towards air and moisture. जब भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. वो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट. दे ऑल आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल लीड यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, राइट, व्हिच विल बी आयनिक इन नेचर. ये सारे के सारे मेटल हाइड्राइड्स जो हैं ये डिकम्पोज करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं. एंड एनीथिंग व्हिच इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज व्हाट बेटा, एनीथिंग व्हिच इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. उसके बाद ये सारे हाइड्राइड्स जो हैं they react with any source which is a which can give a proton, right, and can liberate the hydrogen gas. All alkali metals dissolve in liquid ammonia to give a highly conducting deep blue color solution. To give highly conducting and deep blue color solution. क्वेश्चन ऐसे ही आना है, conducting and deep blue solution. आगे सिर्फ लिखा होना है Y.
अब देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब आप मेटल को अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इट इज गिविंग यू एन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. यू ऑल नो द मेटल्स कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, सो इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. दिस मेटल आयन रिएक्ट विद x यूनिट्स ऑफ अमोनिया. हम कोई पूरी एग्जैक्ट स्टोशियोमेट्री नहीं लिख रहे हैं. एंड इट लीड्स यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे +1. इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस कंबाइन विद y यूनिट्स ऑफ अमोनिया एंड इट गिव्स यू दिस कॉम्प्लेक्स. दिस इज E नेगेटिव एंड दिस इज CH3y. ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वी से दैट इट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. इस रिएक्शन को एक्चुअल में दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आपने एग्जाम्स में, स्कूल्स में कैसे लिखना है इस रिएक्शन को? यू विल राइट मेटल X + Y अमोनिया. ठीक है, आपने अमोनिया को इकट्ठे कर देना है, X + Y कर देना है. ठीक है, और आपने दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को लिख देना है. आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ इट हैपेंस, राइट? पर पेपर में यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वन रिएक्शन. इट इज NH3X. ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 and this is Y here, right? So you have to write both the reactions together, but this is how actually it is happening. This is a very, very important question from the school's point of view. चाहे वो एल्कलाई मेटल्स हैं, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों के दोनों एल्कलाई एज वेल एज एल्कलाइन मेटल्स को जब हम डालते हैं अमोनिया के अंदर, दे आर गिविंग अस हाईली कंडक्टिंग and deep blue color solution. Is this question clear with everyone? Is this question clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll make you read. I'm moving to the next book. Now you see, we'll be talking about oxides and hydroxides. ठीक है, जितना जितना हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मैं आपको सारा रीड करवा रही हूँ साथ साथ में, ताकि when you are learning it from your notes at your place, so things are very easy for you. We all know that metals, ठीक है, उनके oxides, उनके peroxides, उनके superoxides. Metals, right? It can be metal oxide, metal peroxide, or their superoxide. Let me write K properly. Or their superoxides. Whenever beta they are dissolved in water, they lead you to the formation of an alkali. Alkali is water soluble base. When it is reacting with the water, I'll be doing the balancing. Let me show you how to write the reaction. आप किसी भी मेटल को ले लें, उसके ऑक्साइड को ले लें, उसके पेरोक्साइड को ले लें, उसके सुपर ऑक्साइड को ले लें. हर बार आप उसको वाटर के अंदर डाल दें, and what you will be observing that there is formation of a alkali. This is KOH. सिर्फ आपको बाय प्रोडक्ट याद रखने हैं. You have to memorize only the byproduct. I'll be balancing the equation. This is 2 here, this is 2 here, this is 2 here, and it is balanced. This is 2 here, this is 2 here, this is 2 here, 2 here, 2 and 2 here. The equation is balanced again. ठीक है, तो basically क्या है कि these all metals, metal oxides, they are formed like this. But this question is not important. The important question that will come in the exams is the basic strength. ठीक है, इनकी basic strength पे क्या फर्क होगा? When you move down the group, how the basic strength of this alkali metal hydroxides will vary. Like it is lithium oxide, hydroxide, then we have sodium hydroxide, then we have potassium hydroxide, rubidium hydroxide, then we have cesium hydroxide. When you move down the group, the basic character increases. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. Basic character कब increase होगा? देखिए, this is a metal OH bond. Which metal is a stronger base? Which base is stronger?
that is a stronger base which quickly dissociates to liberate OH negative ion. कोई बेस जितने जल्दी से टूट के OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. इज इट ओके? अब देखिए बेसिक करेक्टर में कह रही हूँ इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. when you are coming down the group the basic character is increasing. Why it is increasing? What is happening down the group? Actually there are two reasons for that. अब देखिए क्या हो रहा है कि OH नेगेटिव आयन, ये मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, OH नेगेटिव आयन इज स्मॉल साइज एनायन. ठीक है, वी नो जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस, size of cation increases. ठीक है ये बात. We know one thing that small size cation can stabilize the small size anion and big size cation can stabilize the big size anion. और cation तो बहुत बड़ा है but anion जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए ये जो bond है, just see here, this bond will be very weak, because of which the bond will be easily cleaved and there is a liberation of OH negative ion. This is one way. Okay, OH negative ion was a weak, was a small anion. So cesium ion, which is a big size cation, cannot stabilize it. ठीक है, अगर एक बड़े साइज का केटायन एक छोटे साइज के एनायन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है. जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन लिबरेट होगा, और जितनी जल्दी OH नेगेटिव आयन लिबरेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर वो बेस होगा. इज इट क्लियर? जैसे जैसे आप नीचे आते गए साइज ऑफ द केटायन बढ़ता गया, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल OH बॉन्ड जो थी वो कम होती चली गई, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, बॉन्ड जो था वो जल्दी से टूट गया, इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, नीचे आते आते बॉन्ड का टूटना इजी हुआ. जितनी इजी बॉन्ड टूटा उतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन जनरेट हुआ और उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बेस हुआ. ठीक है, एक रीजन ये हो गया, बहुत लंबा चौड़ा. या सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटल की कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से मेटल OH बॉन्ड जो है वो जल्दी से टूट जाता है एंड OH आयन का रिलीज होना इजी हो जाता है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है. ठीक है, इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, ma'am. Everyone, everybody, boys? Yes, ma'am. Okay. So I'm coming to the this next part, that is halides. We are done with the halides ना. एक बार मैं halides के लिए आ रही हूँ दोबारा से. Other ways of formation of halides. एक तो मैं सारी लिख रही हूँ एक बार. I'm writing all the methods of formation of halides. एक मेथड मैंने लिखा था that metal can directly react with halogen and can form the metal halide, and this metal halide is ionic in nature. Other ways क्या है कि मेटल का ऑक्साइड ले लो, मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, मेटल का कार्बोनेट ले लो, कोई भी ले लो, उसको हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI, इसको मैं लिख रही हूँ, दिस इज योर हेलोजन एसिड. ठीक है, दिस इज योर HCl, HBr, HI, etc. कोई भी हेलोजन एसिड हो सकता है. It will be reacting with that. It will be forming metal halide. ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिनको मैंने टिक किया उनको इकट्ठे कर, बाकी सब एलिमिनेट होएगा. This is twice here and there will be generation of a unit of water. ठीक है, there will be MX and there is generation of water. There is MX, साथ में क्या बनेगा, water, and there will be generation of carbon dioxide. ठीक है, this is what you will be getting. I'll be just, क्या हुआ, there was a cation, right? There was a cation which is always smaller in size and there was an anion.
which is always bigger in size. क्या होता है? It has got strong positive field. ठीक है, strong positive field होने की वजह से it will be attracting the anion of the electrons of the anion towards itself, due to which the structure of anion, the anion gets distorted. Anion gets distorted. What does it mean? anion की जो symmetry थी वो चली जाएगी. anion के अंदर पोल्स बन जाएंगे. उसका जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ धकेल दिया जाएगा, राइट? उसका जो न्यूक्लियस है उसको एक तरफ धकेल दिया जाएगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केटायन अपनी तरफ एक्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, अब वैसे तो बॉन्ड आयनिक था क्योंकि मेरे पास केटायन था और मेरे पास एनायन था. अब क्या हुआ? जब पोलराइजेशन हो गई, पोलराइजेशन हमेशा याद रखेंगे, पोलराइजेशन एनायन की हुई केटायन की वजह से. केटायन की बिल्कुल भी पोलराइजेशन नहीं हुई है. जब पोलराइजेशन हो गई एनायन की केटायन की वजह से, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट. जितना ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा उतना ही एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होगा. I'll tell you so many questions come from this topic with the from S block also. अब देखिए यहाँ केटायन के लिए मैं लिख रही हूँ tendency of cation to drag the electron cloud of anion, the electron cloud of anion towards itself. ठीक है, कैपेसिटी एक केटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज कॉल्ड एज इट्स पोलराइजिंग पावर. ठीक है, पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब हुआ कि केटायन की कितनी कैपेसिटी है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की. अब उसके बाद द टेंडेंसी ऑफ एनायन to get dragged towards the anion is called as its polarizability. इस चीज को हम क्या कहते हैं? That is polarizability. The same concept is in chemical bonding. The same concept is applicable here also. अब देखिए, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी या जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा. एक चीज याद रखें, मोर इज द पोलराइजेशन इफेक्ट. जितना ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट है, मोर इज द कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर. आई एम राइटिंग कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड. उतना ही एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा. आई विल बी डिस्कसिंग. इतना क्लियर है सबको? इज दिस मच क्लियर विद एवरीवन? Yes, एक ma'am. केटायन और एनायन पड़े हुए थे. अब केटायन का साइज छोटा था, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड था. केटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया एनायन के, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो था वो एक तरफ धकेला गया एंड अल्टीमेटली उस एनायन का स्ट्रक्चर, एनायन जो था वो डिस्टॉर्ट हो गया. डिस्टॉर्ट होना मतलब उसकी सिमेट्री खत्म हो गई एंड दिस इज व्हाट इज पोलराइजेशन इफेक्ट. कितनी कैपेसिटी थी एक एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग पावर. और एक एनायन की कितनी कैपेसिटी थी उसकी तरफ खींचे चले जाने की, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेबिलिटी. ये पूरा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये पूरा जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग पावर. एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखे हैं यहाँ पे कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा उतना ही कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा एक आयनिक कंपाउंड के अंदर. पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तब भी पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा. अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो तब भी पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा. Is this much clear with everyone? Yes, ma'am. Is this okay? Now I am coming to some of the reasoning questions which will be asked during the exams. Now factors
affecting polarization effect. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पोलराइजेशन इफेक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं? जो पहला फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ केटायन. ठीक है, अब एक चीज याद रखें, पोलराइजेशन इफेक्ट इज, यहाँ पोलराइजिंग पावर डाल देते हैं. पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन. जितना छोटा साइज होगा केटायन का उतना ही पॉजिटिव फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उतना ही वो एनायन को अपनी तरफ खींच पाएगा. दैट इज उतना ही वो पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी. अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ कि लिथियम क्लोराइड जो है इज मोर कोवेलेंट देन KCl. कोवेलेंट देन KCl. दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जाम्स. अब देखिए क्लोराइड एंड क्लोराइड इज द सेम. कैसे पता लगेगा? ये फजान्स रूल वाला है, पोलराइजेशन इफेक्ट वाला है क्वेश्चन. क्लोराइड एंड क्लोराइड सेम है तो किसको कंपेयर करना है? केटायंस को. अब इस वाले केटायन को देखिए और इस वाले केटायन को देखिए. अब क्या हुआ कि केटायन जो है जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा. जितना पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो क्या मेरी बातें मैच कर रही हैं? इज दैट ओके? Yes, ma'am. Everybody is fine with it? The Yes, second factor I am taking is the size of an ion. जितना बड़ा एनायन होगा ना उतनी ही जल्दी वो खींचा चला जाएगा उसकी तरफ, केटायन की तरफ. तो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी जो है खींचे जाने की, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन is directly proportional to its size. Is directly proportional to its size. ठीक है, जितना बड़ा एनायन उतना ही उसकी टेंडेंसी केटायन की तरफ खींचे जाने की ज्यादा, उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी. जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ही पोलराइजेशन इफेक्ट और उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा. एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आना है? गिव द रीजन या अरेंज. एक क्वेश्चन डाल रही हूँ. अरेंज द लिथियम halides in the decreasing order of their covalent character. In the decreasing order of their covalent bond character. ठीक है, अब देखिए भाई लिथियम का कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर. लिथियम आयोडाइड, ऐसे डाल रही हूँ, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड. क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? डू यू ऑल एग्री फॉर दिस आंसर दैट आई हैव रिटन? अब क्या है बेसिकली, लिथियम तो सब में सेम है, लिथियम सब में सेम है. अब पूरी की पूरी कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर की कहानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एनायन के ऊपर. जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतनी ही उसकी टेंडेंसी केटायन की तरफ खींचे चले जाने की ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा और जितना ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा. इज इट फाइन? इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, now ma'am. I'll be coming to the next factor, that is size. I'll be talking about the size या charge on the ion. अब मेरी बात सुने. The bigger is the charge on cation. Bigger is the charge on cation. जितना बड़ा चार्ज होता है फिर क्या होता है? उतना ही उसका छोटा साइज होता है. ऐसे ही होता है कि नहीं? Smaller is the size of cation. ठीक है, उतना ही छोटा साइज होगा केटायन का. And can we say the more will be the polarizing power of the cation? ठीक है, ये बात एग्री करते हैं मेरे साथ? Do you Yes, all ma'am. agree? अच्छा, पेपर में how you will be getting a question? पेपर में कैसे क्वेश्चन आना? Arrange
in increasing order, किसको, कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालिए। अब देखिए जैसे हमारे पास है NaCl, ठीक है, देन वी हैव सोडियम सल्फेट, ठीक है, सॉरी, देन वी हैव, यहाँ पे चेंज कर देते हैं यहाँ पे, देन वी हैव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड देन वी हैव एल्युमिनियम क्लोराइड। Now you see one thing, the chloride ion is the same. Here you see it has got sodium +1, it has got magnesium +2 and here you have aluminium +3. तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा है, जितना साइज छोटा है उतना ही कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। Is it okay? Yes, ma'am. Is it fine with everyone? Yes, ma'am. Now I'll be talking about the charge on an ion. ठीक है, अब देखिए, bigger is the charge on an ion, bigger is the charge on an ion, more, ठीक है, is its tendency to get polarized, tendency to get polarized। अरे भाई जितना ज्यादा polarized होगा तो कह सकते हैं the more will be covalent bond character, will be covalent bond character, कह सकते हैं इस बात को। जितना चार्ज ज्यादा है एनायन पे उतना वो बड़ा साइज है, जितना वो बड़ा साइज है उतना ही उसकी टेंडेंसी कैटायन की तरफ खींचे चले जाने की ज्यादा है और उतना ही उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी ज्यादा है। If I am taking the example that you will get in the school, ये सारे क्वेश्चन, then it is NaCl, then we have Na2SO4, then you have Na3PO4. Now you see the cation is the same. The cation is same. This is sodium, this is sodium, this is sodium, but anion is different. ठीक है, anion देखिए, this is chloride here, ठीक है, this is sulfate here, and this is phosphate here, PO4-3, ठीक है। तो अब क्या है कि जितना बड़ा एनायन का साइज होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो भी ज्यादा होगा। Is it fine with everyone? Yes, It's ma'am. okay. Yes, ma'am. एक पॉइंट में नहीं कवर कर रही हूँ, that I'll be taking tomorrow and I'll make you read this page here along with me. Yes, quickly we'll read the page. Quickly we'll read the page. I've covered all the questions that are there on the page. Just wait. Just read this page. Only this page. Last वाला क्वेश्चन छोड़ेंगे. Last इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट जो है वो छोड़ देंगे.